السلام علیکم، پروگرام مجھے خبر ہے کے ساتھ میں ہوں عامر رو۔ ناظرین، ویسے تو موجودہ مجموعی سیاسی صورتحال ہی گمبھیر ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مختلف حکمت عملیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو ملکی اداروں کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کرنے والے اور تحریک انصاف کے حمایتی سمجھے جانے والے سابق آرمی افسران اور یوٹیوبرز، جس میں عادل راجہ اور حیدر مہدی جو ہے وہ سر فہرست ہیں، اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایک ٹی وی پروگرام میں زرداری صاحب اور میاں صاحب سے علی محمد خان نے مفاہمت کا بیان بھی دیا ہے، جبکہ شیر افضل مروت، علی امین گنڈاپور اور عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے ملاقات کے بعد کہا کہ خان صاحب نے جارحانہ پالیسی اپنانے کا کہا ہے۔ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں، بین الصوبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ، ان پہ تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل، اپنی عوام کے مسائل، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے ان کا، اس پہ تو ہماری ہوپ واجب ہے۔ باقی اس حوالے سے جو مینڈیٹ چوری کیا، جو انہوں نے پہلے کرپشن کی، یا ان کا جو نظریہ ہمارے نظریے سے نہیں ملتا، اس حوالے سے ہمارے کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا مذاکرات۔ بس کریں یار، اب آگے چلیں، اب بڑے لیڈر کو باہر نکالیں۔ خان بڑا لیڈر ہے، قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ میاں صاحب خود بڑے لیڈر ہیں، میاں صاحب، خان صاحب، زرداری صاحب، صدر مملکت عارف علوی صاحب کو میں نے ریکویسٹ بھیجی تھی، اس پہ ظاہر ان کی کوئی اپنی مجبوریاں ہوں گی۔ کبھی صدر ہاؤس میں بڑے لیڈران کو بٹھائیں۔ دیکھیں، سب کو پتا ہے عمران خان دہشت گرد نہیں ہے، سب کو پتا ہے زرداری صاحب کو خدا نخواستہ ملک دشمن نہیں ہے، سب کو پتا ہے نواز شریف غدار نہیں ہے۔ خان صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 7.5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید 7 سال بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہ میں مصلحت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی ادھوری مینڈیٹ کے ساتھ کسی۔ اس ساری صورتحال پہ پی ٹی اے ورکر نہ صرف پریشان ہے بلکہ شکار ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی میں یہ تاثر بھی کافی زور پکڑتا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت، اسد کیسر، علی محمد خان، شہریار افریدی سمیت پی ٹی آئی کے کئی رہنما اب جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں۔ ان کے معاملات پارٹی کے حق میں بہتر نہیں رہے۔ ان سارے پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب۔ سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ فرمائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں تھوڑی کنفیوژن کا تاثر آ رہا ہے۔ علی محمد خان صاحب مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو اگلے دن خان صاحب اس بیان پر بہن کے ذریعے وضاحت جاری کرواتے ہیں اور جارحانہ پالیسی اپنانے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان ہم سب کا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بہت مشکلات سے گزر رہا ہے۔ یہ ٹائم بھی بڑا مشکل ہے، عوام پریشان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملکوں کو کیسے آگے لے جایا جاتا ہے۔ جمہوری ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد نئی حکومت بنتی ہے اور وہ پھر اپنے عوام کے لیے جو مینڈیٹ لے کر آئی ہوتی ہے، جنہوں نے کیے ہوتے ہیں، وہ اپنے عمل درآمد کراتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو الیکشن ہوئے، یہ الیکشن نہیں کری، یہ کچھ سلیکشن بھی کوئی عجیب قسم کی چیز تھی ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ جیتے ان کو واپس کیا گیا اور ان کی جگہ جو ہارے ہوئے لوگوں ان کو اسمبلی میں لے آئے، پھر حکومت بنائے۔ آپ کہتے ہیں جی اس حکومت کو چلانا ہے، تو جس حکومت کے عوام نہ ہو تو ان کا چلنا کیا ہوگا؟ مطلب اس وقت تو آپ دیکھیں 2 بڑی قوتیں اس وقت جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ٹھیک ہے، جے یو آئی کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کے پاس ہوتی ہے۔ دونوں اس وقت حکومت سے باہر ہیں اور دونوں جو ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو پی ٹی آئی تو اسمبلی میں بھی آواز اٹھا رہی ہے، قانونی جنگ بھی لڑ رہی ہے اور ساتھ اگر ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی آ سکتی ہے۔ سڑکوں پہ آئیں گے اور آپ نے جتنے بھی دھاندلی کی طرف اور جتنے بھی معاملات پہ آپ نے اشارہ کیا بجا ہے اور اس میں پاکستان کی بیشتر عوام اس سے اتفاق بھی کرتی ہیں۔ میں آپ کے کارکنوں کا ایک بیانیہ تھا، میں اس حوالے سے آپ سے میرا سوال تھا کہ جیسے میں نے بتایا کہ علی محمد خان صاحب مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو اگلے دن خان صاحب جو ہے وہ اپنی بہن سے جو ہے وہ ملاقات کے بعد جو ان سے پالیسی، ان کے بیان کی وضاحت جاری کرواتے ہیں۔ یہ جو علی محمد خان صاحب نے زرداری صاحب اور میاں صاحب سے بات چیت اور مفاہمت کی بات کی ہے کہ یہ پارٹی پالیسی ہے یا ان کی ذاتی رائے یا ان سے یہ باتیں کروائی گئی ہیں؟ دیکھیے، نہ کروائی گئی ہے نہ علی محمد ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ ورکر ہے تحریک انصاف کا۔ اس نے جو بات کی اس کا کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، اس نے ملک کے حالات کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر ہمیں ہماری سیٹیں واپس کر دی جائیں، ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیا جائے تو پھر ہم اس چیز کے لیے پھر تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب یہ آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے مینڈیٹ دینا ہے ہمیں،
इतना वो करना है, तो इसलिए इस बात का तो कोई वो है नहीं। बाकी रह गई हमारी पार्टी पॉलिसी, वो बड़ी क्लियर है। पार्टी पॉलिसी में पहले से हम तय कर चुके थे कि अगर हमारी अक्सरियत जितनी भी हुई, लेकिन अगर हमें पीपल्स पार्टी या नून लीग में से किसी एक के साथ मिलकर हुकूमत बनानी हो तो हम नहीं बनाएंगे। इसी तरह एमकेएम के बारे में भी हमारा फैसला बड़ा क्लियर था। तो हम तो पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि हमने बैठना है अपोजिशन। ठीक है, लेकिन जो जिस तरह आप भी तस्लीम कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है कि इनसे मैंडेट छीना गया, वो एक अलग बहस थी कि हमें हराया गया। लेकिन कम से कम मखसूस नशिस्तें वापस लेना, हमसे लेना, ये बहुत बड़ा जुल्म है एक किस्म का, और ये इंतशार की तरफ मुल्क को धकेलने के मुतरादिफ है। क्या तहरीक इंसाफ के जो वोट मिले हैं, क्या ये अवामी राय नहीं है? इसका एहतराम नहीं हो सकता है? तो लोग जो है ना, हमें इस चीज की भी फिक्र है कि अगर हम ये नहीं करते तो कल जो IMF के जरिए जो महंगाई का तूफान उठने वाला है, अवाम हमें गिरबानों से पकड़ेगी। वोट हमने आपको दिया है, तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तो इसलिए हम चाहते हैं कि उस चीज की नौबत ना आए। पाकिस्तान अगर मुश्किल में है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। जिम्मेदारी की अगर लेकिन उसके लिए मुश्किलात से निकालने की, तो फिर तो अली मोहम्मद खान साहब ने बयान तो वो ठीक दिया है कि अगर मुफाहमत से आप पाकिस्तान की अवाम को मिल बैठ के निकाला जा सकता है, तो आपके पास भी एक सूबे की हुकूमत है, तो आप उस अपने मैंडेट के मुताबिक आपकी जो कानूनी चारा जो है उसको जारी रखते हुए तो एक पाकिस्तान की मईशत के लिए तो इकट्ठे बैठा जा सकता है। मैं देखिए, मैं आप बार बार अर्ज कर रहा हूँ, ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे वो है ना कि नमाज मत पढ़ो जब आप नशे की हालत में हो। तो नमाज मत पढ़ो तो लोग, कुछ लोग ये कहते हैं जी नमाज मत पढ़ो, ये जो आया हुआ है, तो उसके आगे भी पढ़ा जाए ना कि देखिए मुफाहमत, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए, ये पाकिस्तान हमारा है। हम ये कह रहे हैं कि जो मैंडेट चुराया गया है वो वापस तो करे ना। उस पर आप क्यों, मतलब आप चाहते हैं कि मुफाहमत इस तरह होती है, आप एक गला दबा के उसको गला दबा के छोड़े, बोलो कि जब उठोगे तो तुमने मेरे साथ हाथ मिलाना है। तो ये तो दबोचा हुआ है इन्होंने, और इनको जरूरत भी नहीं थी। ऑलरेडी देखें, इनके पास अक्सरियत थी, हुकूमत बना सकते थे, क्योंकि हमने हुकूमत में नहीं आना था। तो फिर हमारी मखसूस नशिस्तें लेकर तो इन्होंने जानबूझकर चिंगारी वो किया ना। तो इससे हालात अगर खराब होंगे तो पीपल्स पार्टी नून लीग रिस्पॉन्सिबल होगी, एमकेएम रिस्पॉन्सिबल होगी। इसलिए कि हम तो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, लेकिन अगर आप हमारे मैंडेट को नहीं तस्लीम करते तो हम आपके मैंडेट को क्यों तस्लीम करेंगे? आप जरा देखें, टॉक शो में देखें, इनके जो भी लोग आते हैं, मुझे कैफी में धांधली हुई, हम तो कहते हैं अगर धांधली हुई है तो हमें कोई हल्का बता दें, हम आपको बोल के दे दें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन आपका है, सर आपने हमारे खिलाफ ओपन आपने ऑडिट का जो है वो ये पेशकश की है, और ये इस बात का सबूत भी है, आवाम इस सारी चीज़ों को देख भी रही हैं। सर ये जो मैंने बात कर रहा था कि PTI रहनुमाओं के बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के इल्ज़ामात और तासर हैं, इसकी हकीकत क्या है? आप इसकी खुल के ज़रा थोड़ी सी अगर वजाहत फरमा दें। देखिए, मैं नहीं समझता कि जो लोग बैकडोर क्या होता है, जब आपको पता है कि जो 7-8 महीने गुजरे, जिसने जाना था वो चले गए, इसके बाद क्या मतलब उसके बैकडोर चैनल क्या होता है? उस दिनों में अगर वो नहीं टूटे और नहीं गए उस दिनों में, तो ये नहीं था कि आप हमारे साथ बैकडोर चैनल जारी रखें। उन दिनों में तो ये था कि भाई उनको छोड़ के इधर आए। ठीक है, तो सबको प्रेशराइज किया गया। हाँ, उस वक्त कुछ लोगों ने खामोशी इख्तियार की होगी, किसी ने क्या किया कि अपने तौर तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान ये जो आप उन्होंने नाम लिए, असद कैसर और अली मोहम्मद और शेर अफजल मरवा, तो मतलब ये कि मुझे नहीं ख्याल है कि इतने ऐसे लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले होंगे और उनकी वसातत उनकी बात कर रहे होंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है। बाकी हालात आपके सामने, कहाँ पे उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है, कहाँ पे मतलब पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। एक बंदा जो है वो जेल भी जाता है, वो उसका कारोबार भी बंद होता है उसका, तो मतलब ये कि वो
फिर तो नहीं होना चाहिए था ना ये सब चीजें। ठीक, वो चलें, ये जिस प्लेटफॉर्म पे सर ये बातें सारी हो रही हैं, ऑब्वियसली जो वो प्लेटफॉर्म तो वैसे वीपीएन से यूज़ हो रहा है कल एक्स, उसी पे एक और बात भी चल रही है, और वहीं पे जो एक इन्फ्लुएंसर हैं आदिल राजा और हैदर मेहंदी, उसके हवाले से पीटीआई ने एक वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि वो पीटीआई का और हिस्सा नहीं है। पीटीआई रहनुमाओं को रोज़ रोज़ वजाहतें ऐसी क्यों देने की जरूरत पेश आ रही है अचानक से सर? देखिए, ये तासुर तो बिल्कुल गलत है कि तहरीक इंसाफ जो है वो फौज के साथ कोई खुदा न ख्वास्ता कोई लड़ाई है या ऐसी कोई बात है नहीं। जो मेहदी और ये जो कर रहे हैं वो तो डायरेक्टली फौज को हिट कर रहे हैं, एक इदारे को हिट कर रहे हैं, तो उस इदारे को हिट करने के हक में तो हम कोई भी नहीं है। हमारी पार्टी तो मुहिब वतन है। अगर हम फौज, हमारी पाकिस्तान की फौज है, अगर हम पाकिस्तानी फौज के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे? लेकिन जो स्ट्रेटेजिक हालात है, जो चीजें उनके लिए है, उसमें हम उनके साथ हैं, पाकिस्तान के दिफा में उनके साथ हैं। लेकिन हमारी जो चीजें हैं वो पॉलिटिकल हैं, तो हम पॉलिटिकल चीजों को उसमें नहीं ला सकते कि हम पूरी फौज को मुलायम करें, हम पूरी फौज के खिलाफ एक किस्म की नफरत फैलाएं। ये चीज तो नाकाबिल बर्दाश्त होगी पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि अगर फौज कमजोर होती है तो पाकिस्तान कमजोर होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शौकत साहब, इन्हीं दो जो हज़ार जिनका मैंने नाम लिया, इनका जो बयानिया था, क्योंकि ये एक सिंक बयानिया होता था हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बात कर रहे होते थे वो भी यही बात कर रहे थे, और अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुज़श्ता 2 दिन का अगर उसका ट्रेंड देखा जाए तो जो पीटीआई कारकुन थे वो इस हवाले से काफ़ी जो है वो आड़े हाथों ले रहे हैं। जिन मैंने अफराद का नाम लिया, इनको भी वो इल्ज़ाम का दे रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो बैकडोर राब्तों की वजह से ऐसे लोगों को जो हमारे साथ खड़े होकर हमारी हक की बात कर रहे थे वो इनके खिलाफ है। अब उनका ये मकबूल होता बयानिया आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, उन्होंने कोई गलत बात तो की नहीं है, आप मीडिया उसको जैसे भी ले, लेकिन जो बात अली मोहम्मद ने की या असद कैसर ने की है उसमें गलत बात क्या है? या शेर अफजल ने कौन सी गलत बात की? आज मैं ये कर रहा हूँ कि भाई फौज हमारी फौज है, हम फौज के खिलाफ नहीं है, तो अगर इस पे कल मेरे खिलाफ कोई बात करेगा तो उसका हक है करे, लेकिन मैं तो कभी फौज के खिलाफ नहीं जाऊंगा, ना फौज के खिलाफ हूँ, ना मेरी पार्टी फौज के खिलाफ है। देखो, हमारे एक पॉलिटिकल वो है और वो हमें हक हासिल है आईनी तौर पे भी। अगर हम असम्बलियों में जाएं और या असम्बलियों से बाहर रहे तो दोनों सूरतों में हमारा एक वो है, हम उसके लिए लगे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हमारे आईनी और ये हक हासिल हम करते रहेंगे। देखें ना, हमारे पास और क्या है? हमारे पास ये है कि असेंबली में आवाज उठाए, हमारे पास लीगल बैटल है, हम अदालतों में जा रहे हैं, फिर इसके बाद हमारा क्या कहते हैं, हो सकता है हम फिर सड़कों पे भी आ जाए। ये भी तो है ना, अगर नहीं आएंगे तो वैसे भी 2 महीने बाद आवाम सड़कों पे होगी, जो महंगाई जो सैलाब आ रहा है IMF की तरफ से, तो आप समझते हैं कि सस्टेन कर जाएगी। ठीक है, आप अगर कोई सूरत हाल ना नजर आई तो आप सड़कों पे भी आ सकते हैं। सर, पार्टी की जो भागदौड़ है, आपने एक बड़े धीमे मिजाज शख्स यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब को दी है, लेकिन कारकुनों में मकबूलियत आपके जो इलाके के शेर अफजल मरवत साहब हैं, जैसे गर्म मिजाज रहनुमा किया है। क्या ये 2 इंतहाएं लेकर आप इस मामले को आगे बढ़ा सकेंगे? देखिए, ये तो लीडरशिप का काम होता है ना कि वो अपने प्लेयर्स कहाँ कहाँ उतारने होते हैं। आपको पता है, कोई सेंटर फॉरवर्ड पे खेलता है, कोई राइट पे खेलता है, कोई लेफ्ट पे खेलता है, तो हर एक का जो है अपना मिजाज होता है ना। अगर आप सारे एक ही मिजाज के रख लेंगे तो फिर पार्टी कैसे आगे चलेगी? तो ठीक है, आपने सही कहा, गौहर जो है वो काफी, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो काफी धीमे मिजाज का भी है, तो उनको जाहिर है जो मामलात हवाले हुए हैं वो उसमें बड़े फिट है। और शेर अफजल मरवत तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका गर्म खून है, जज्बाती भी है, तो जाहिर है अपने वर्करों को भी तो गरमा के रखना होता है। ठीक है, आपने कम्बिनेशन बनाया हुआ है हॉट एंड कोल्ड का। चले, कहा जाता है सर, एक अब कुछ लोग पार्टी में अपनी हैसियत से ज़्यादा असर रसूख रखने लगे हैं। क्या ये पीटीआई में मानस खान किसी फार्मूले या साजिश की कड़ी तो नहीं है? देखिए, खान की जगह कोई नहीं ले सकता, ये अगर किसी की गलतफहमी है ना, कोशिश तो साजिश तो हो सकती है ना। मैं तो साजिश पूछे कि क्या कोशिश नहीं, आप कुछ भी कर लेना। आपने इस 8-9 महीने जो कुछ हुआ वर्करों के साथ, लीडरों के साथ, खान के साथ खुद जो ज्यादतियां हुई, उसमें आप मुझे बताएं कि ना खान टूटा है, ना उसके वर्कर टूटे हैं, ना लीडर टूटे हैं, तो अब इसके बाद क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि वो खान तो कह रहा है कि मुझे सारी जिंदगी जेल में रखो, मैं नहीं मानूंगा।
तो देखिए, अगर आपने पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो मुफाहमत तो उस सूरत में होगी ना जब आप खुद चाहें कि पाकिस्तान आगे जाए। आप खुद इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। जब तक आपका इलेक्शन कमीशन मौजूद है, जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके मेंबर्स, तो आप समझते हैं कि मुल्क आगे बढ़ सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है। ये तो बिल्कुल इंतशार की तरफ मुल्क धकेलने के मुतरादिफ है जो वो कर रहे हैं, जिस तरह के फैसले हो रहे हैं। तो उसमें देखें ना पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी के साथ क्या हो रहा है। तो आवाम इसको बर्दाश्त कर लेंगे, हम तो चलो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब ये जो नया मायदा हो रहा है IMF के साथ, तो ये तो कहाँ पे पहुंचेगा? अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉलर को देखें सर, एक दफा PTI जो है वो देखें, बिजली का यूनिट है ना, जी फरमान, बिजली का यूनिट जो है बांग्लादेश में आप देखें ₹2.75, इंडिया में ₹2.50। ये वहां का, हमारे वहाँ कितना है? ₹82 फी यूनिट। तो आप मुझे बताएं कि आपके कारखाने तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, कम्पीट कहाँ से करेंगे? सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाएंगे ये चीजें, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट तो नहीं हो सकती। माशी सूरत बड़ी यूज करेंगे वाली का शिकार है और संतों के हवाले से हम एक्सपोर्ट खत्म हो गई आपकी। देखें, इन्वेस्टमेंट पहले से खत्म है। पूरे साल में, पूरे 2023 में $1.7 बिलियन की आपकी बैरूनी सरमायाकारी हुई है, और ये इंडिया में एक दिन की सरमायाकारी है। तो आप सोचें पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस वक्त। सर, माशी तौर पे तो इस्तेहकाम आपकी सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है, और सियासी तौर पे कुछ फैसले, जैसे ज़ाहिर आप भी फरमा रहे हैं कि वो रियासत की जानब से कुछ फैसले ऐसे हैं जो जिनको बड़ी हंगामी बुनियादों पे जो है वो सोचना पड़ेगा, उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। ये बिल्कुल आप वजह फरमा रहे। सर आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालात थे, टाइम कुछ था कम है, तो मैं चाह रहा था कि सारे सवालात आपसे कर लूँ। सर, एक तरफ PTI की पूरी सियासी जो रवायती सियासी जमातों के ख़िलाफ़ है, दूसरी तरफ इतना नुकसान उठाने के बाद आप लोग अब इन्हीं सियासतदानों से हाथ मिलाने का इशारा दे रहे हैं। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब से बातचीत के हवाले से बात हुई और फिर मुखालफत भी हुई आपके कैंपों से। तो इन फैसलों से आपको लगता है नहीं है कि आपका जो कारकुन है, जैसे मैंने शुरू से आगाज़ भी इस बात से किया था कि आपका कारकुन थोड़ा तजब्जब का शिकार है, तो ये फैसले जो हैं रवायती सियासत के ख़िलाफ़ जो आपकी मकबूलियत थी उसके अगेंस्ट कोई फैसला आएगा तो वो आपको सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाएगा? देखिए, मेरी बात सुने, ये जो आप बात कर रहे हैं ना मौलाना फजल रहमान साहब की, वो एक अलग, उनको अलग रखें, और पीपल्स पार्टी और नून लीग को आप अलग रखें। वो इसलिए कि ये 3-3, 4-4 बारियां ले चुके हैं मुल्क के अंदर। आज मुल्क पे जितने कर्जे चढ़े हैं, जो मुल्क की मईशत खराब हुई है, जो इस वक्त हम कहते हैं कि डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा है, महंगाई है, ये इसकी वजह से कि इन दो कुव्वतों ने मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है। और आप देखें कि लास्ट में इन्होंने इमरान खान की हुकूमत हटा के 80 अरब रुपए इन्होंने माफ करा दिए। तो ये हम समझते हैं कि ये मुल्क के तबाही के जिम्मेदार ये हैं। बाकी तो देखें, कभी NP हुकूमत में रही है साथ मिला के, कभी JUI रही है, कभी दूसरी रही है, लेकिन जो मेन स्टेक होल्डर है जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचाया है, वो दो बड़ी पार्टियां हैं जो अब नहीं रही है बड़ी पार्टियां। सर, आप तबाही का जिम्मेदार, आप मुल्क की बदहाली का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी PDM को करार देती रही, और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से आप कैसे कह सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान? नहीं, मैं उसको तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान के साथ हम क्यों मिले थे? हमने कोई इत्तेहाद तो नहीं करके कोई इलेक्शन लड़ना है उसके साथ, ना हमने उसके साथ कोई हुकूमत बनानी है। ये जब हमने फैसला किया कि जितनी भी वो पार्टियां जो इस हुकूमत में शामिल नहीं हो रही और वो समझती है कि इस मुल्क के अंदर धांधली हुई है, और तो हमने फैसला किया था कि हम उन तमाम पार्टियों से हमारा डेलीगेशन मुलाकात करेगा। 2 में तो मैं खुद था, जमात इस्लामी के साथ मैं था, शरफाव खान के साथ था, चकजई साहब के साथ। तो ये तो देखें, ये तो हमारा डिसीजन हुआ था, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, उनकी जमात भी थी, वो भी कह रही है कि जी धांधली हुई है और मैंडेट चोरी हुआ, हमारा भी यही मौकफ है। तो जाहिर है हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम अगर ये करके बैठ जाएं कि जी हमने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना, तो हमने हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि हम खुदा न खास्ता कोई मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उनकी स्ट्रेंथ पे हम असेंबली में पहुंचना चाहते हैं। हमारी अपनी स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी की स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, हमें हमारी अपनी स्ट्रीट पावर मौजूद है। हम अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो हम खुद भी कर सकते हैं, तो ये तो हमने साबित भी किया है। मौलाना फजल रहमान साहब से आप कह रहे हैं कि धांधली के मामले पे या इस तरह के मामले पे जहाँ पे हमारी बात एक है तो बात जो है वो आगे बढ़ सकती है।
देखिए मैं आपसे शुरू में कहा कि जमात इस्लामी के साथ भी हमने यही बात की, शेरपाव ग्रुप के साथ भी यही किए, और पार्टियों के साथ भी सेम, मौलाना साहब से भी हमने यही कहा कि अगर आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई तहरीक चलानी है या अपनी इसके लिए आवाज उठानी है, तो हम मुश्तरका आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। तो उसमें तो कोई जाती कोई फायदा नहीं है कि हम समझते हैं कि कोई हुकूमत में शामिल हो जाएंगे या हमें कोई ज्यादा सीट मिल जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुसलसल ज्यादतियां तो हो रही हैं। पहले पार्टी को प्री पोल रिगिंग में उलझाया गया, उसके बाद फिर मैंडेट चोरी किया, तीसरा मखसूस नशिस्तों पे डाका डाला गया। तो ये सारी चीजों पे हम अगर खामोश रहेंगे तो आवाम हमें नहीं छोड़ेगी ना। आवाम हमसे मुस्तकबिल में सर कोई एहतजाजी तहरीक जो है वो आप कह रहे हैं कि कोई भी जो जमातें हैं जो इस बयानिए के साथ रखती हैं वो आपके साथ शरीक हो सकती हैं? देखिए जनाब, हम तो अवलीन तरजीह हमारी ये है कि हम असम्बलियों में आवाज उठाएं। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि हम असम्बलियों में बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये फिर हम अदालतों में भी गए हैं, हमारा केस पेशावर हाई कोर्ट में भी चल रहा है मखसूस नशिस्तों का। तो हम समझते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा हक है। क्योंकि ये जो इन्होंने जो वजाहत की थी आर्टिकल 106 की, उसमें ये कहा गया था कि पार्लिमानी पार्टी जो होती है उसको मखसूस नशिस्तें दी जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। 106 में कहीं नहीं लिखा, उसका जो 106 का जो DE शेक देख लें, उसमें कहीं नहीं लिखा कि पार्लिमानी पार्टी जो होगी उसको नशिस्तें मिलेगी। उसमें लिखा है पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी आजाद मेंबरान शामिल होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ पे उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएगी। तो ये तो बिल्कुल गलत तशरीह की जा रही है। अगर इसमें इतना वजन होता जो इन्होंने फैसला किया है जी जी, तो ये शुरू दिन से इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुकी होती। लेकिन चूंकि इन्होंने 2019 में, आपको याद है कि वो शाहजी गुल को 3 सीटें मिली थी और बाद में उन्होंने बाप पार्टी में शमूलियत की, फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद उनसे नाम मांगा कि जी आप एक खातून के लिए नाम दे सकते हैं। तो ये वही कानून है ना। अब क्या हो गया, उसके बाद तो कोई कानून साजी हुई नहीं है। तो अगर बाप पार्टी को मिल सकता है जो उन्होंने पहले कोई लिस्ट नहीं दी थी, तो उनको मिल सकती है, मखसूस नशिस्तें मिल सकती है। बिल्कुल सर, मखसूस नशिस्तें जो है वो मैंडेट के मुताबिक हर पार्टी का हक है। और कानूनी तौर पे आप जो चारा जो करते हैं, लेट्स सी, उस पर उम्मीद है आप पेशावर हाई कोर्ट से एक रिलीफ का जो इशारा मिला भी। सर आगे बढ़ते हैं, महमूद अचकजई की सदारत के लिए और गंडापुर साहब को आपने जैसे बात की थी कि हम असम्बलियों के अंदर पहली आपकी प्रायोरिटी है कि आवाज़ उठाएंगे। अब महमूद अचकजई की सदारत के लिए और गंडापुर साहब को KP के वज़ारत आला के लिए आपने चुनना जो है, क्या ये PTI ऑल आउट मज़ामती और तनाव की सियासत की तरफ जाना चाहती है, उस जानब इशारा है, या बस एक जेस्चर है जो किसी के लिए दिया गया है? मेरे ख्याल से तो आपको अली अमीन की जो अपॉइंटमेंट हुई है, ये तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि ये पहली बार पाकिस्तान में इस तरह के फैसले हो रहे हैं कि उमर अयूब को वहाँ अपोजिशन लीडर बनाया गया, जो इमरान खान का कोई रिश्तेदार भी नहीं है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर इमरान खान का कोई रिश्तेदार नहीं है। गौहर को देखें, सारे वर्कर्स हैं और पहली दफा किसी वर्कर्स की अपॉइंटमेंट हुई है सिर्फ उसकी खिदमात की बुनियाद के ऊपर। तो उधर दूसरी तरफ आप देखें, मरियम नवाज शरीफ की बेटी, भाई वजीर आजम, अभी समधी जो है वो वजीर बन जाएंगे कुछ और। तो वो जो फैमिलीज पार्टीज है ना, उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ को तो आपको पता है कि हम जैसे लोग भी असम्बली में बैठे, वजीर बने। तो अगर हम दूसरी पार्टियों में होते तो मुझे नहीं ख्याल है कि इतने बड़े बड़े चंदे हम दे सकते और वहां तक पहुंच सकते। नहीं सर, ये तो हमारी काबिल तहसीन है। अली अमीन गंडापुर साहब जो आपने बात कर रहे हैं कि मरूसी सियासत के हवाले से, तो ये काबिल तहसीन बात है। मेरा जो सवाल था वो ये था कि मुज़ाहमती सियासत, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जैसे ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना थोड़ा सी गलतफहमी है। लोग समझते हैं कि अली अमीन जो है बड़ा वो है, इस तरह नहीं है, जो दिखता है उस तरह नहीं है। बड़ा नरम मिजाज है, बड़ा वो है, और दूसरी अपनी पार्टी पॉलिसी को समझता है। पार्टी पॉलिसी से इधर उधर नहीं जा सकता वो। जो पार्टी ने उनको जिम्मेदारियां दी वो निभाएगा। और ये जो तासुर दिया जा रहा है, देखें 2 चीजें हैं, 2 किस्म के ऑडियंस भी है। एक ऑडियंस जो है वो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और आम आवाम। तो उन तक तो हम ये मैसेज दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये है कि इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि जो हमारे सूबे के हकूक हैं उस पे हम
वफा के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। सर गवर्नमेंट टू दूसरे आइडियाज जो है वो मेरी असल में ये आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की जो बात की है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी अभी ना वो तकरीबन हलफ बर्दारी में गए हैं, उसके अलावा भी मैं आपको अर्ज करता हूँ सर, जी मेरी बात अब मुकम्मल होने जी दें। जी देखिए हम तो उनको नाजायज समझते हैं ना कि ये नाजायज गवर्नमेंट है वफाक में, ठीक है, हम उनकी अलबरदारी में नहीं जाते हैं, लेकिन सूबे के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। सूबे के हकूक के हवाले से हमें जो भी मीटिंग बुलाई जाएगी वो उसमें अली अमीन गंडापुर शिरकत करेंगे। ठीक। बाकी जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो अपना चलाएं, हम अपना चलाएंगे, हमें ना उनकी जरूरत है ना उनके हमारी जरूरत होगी। सिर्फ ये मैंने आपसे कहा कि सूबे के हवाले पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो अली सूबे अमीन के हवाले से जो बातें काम होंगी, जो करेंगे, मैकेनिज्म और दामन दरकार होगा, उस बिल्कुल हवाले से होगी, बात उसमें करेंगे। वो बैठेंगे, उनकी मीटिंग में भी जाएंगे, ये मैं ऐलान कह रहा हूँ, कोई उसमें रुकावट नहीं होगी। अली अमीन जाएंगे उधर, मीटिंग में बैठेंगे उनके साथ, लेकिन सूबे के हकूक के हवाले से। सर 9 मई के हवाले से Politically- 9 मई के हवाले से एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया था जिसके अंदर कहा गया कि किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। दूसरी जानब खान साहब की जानब से आज उसको इंडोर्स भी किया गया कि बिल्कुल जो 9 मई के किरदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो 9 मई के अंदर तो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो नामजद जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है वो 90% लीडरशिप है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल है। तो ये बयानिए दोनों अगर उनमें सिंक भी हैं तो फिर अगर कार्रवाई शुरू होती है तो सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। तो इसको फिर किस तरह देखें?